Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Virtual Help will help you to solve your small query to complete your task on a computer system. Before I start today's topic, please subscribe my channel and click on this bell icon. When you click on this bell icon, you will see my channel videos on our first preferences, and please share my channel for those people who need a virtual support. Yes, class. As in the first session, we discuss about the basic information about algorithm. That algorithm is divided into multiple parts, like the two very important parts, flowchart and pseudocode. So we are here to start a pseudocode basic information. Okay, before you are start writing a pseudocode, there are few things which you have to be remember or you have to just focus while you are writing anything. Acha, class, whenever my voice is distracted, so please let me know in the chat box. Okay, sir, your voice is lagging or we are not able to hear you properly. The steps of the pseudocode, before we are going to start a pseudocode, so we have to follow okay, how the pseudocode or any programming system is working according to the requirement of the system. Okay, wherever you are writing an algorithm, either you are using a pseudocode or flowchart, these three steps is always to be followed. Step 1, input. Input that in the input there are two things you have to consider. Number 1, you have to make a platform okay the system can accept your information. The second thing, okay, how you are going to collect the information. Number 1, how the system is going to accept and how you can write the information can the user get that platform where the user give the input. As we already know the capability of the computer system, the computer system is not able to perform any task by itself. The user has to give the information to the computer system. And whenever we are talking about the programming, so we have to make that platform or we have to write the steps or some instruction in such a way okay, which with the help of that particular instruction the user can give the instruction to the computer system. Then when you collect the information, then you have to make the process part. For example, you wanted to make a database where you are collecting the information of the user like name, father name, class, GR number. Then what you are going to do with this particular data? Maybe you are creating a mark sheet. Maybe you are correcting the ratio of the male and female student of your class, or maybe you are collecting that type of the information where you are identifying how many students you have in class 9 and how many students you have in class 10. Okay, so the process part is there the formula, which type of the calculation you required, which type of the formula you required to compile your information where which you collected from the user. And the last part, the output. You took the input, you process it, then how you are going to give the result of your calculation. The one thing I wanted to just make clear over here, in O-level computers, in P2 especially, the programming part, it is not only about that they are making you engineers over here. Okay? They are trying to teach you, the curriculum is trying to teach you to get the basic information of programming. Then you can easily troubleshoot, analyze, or make the difference of these three stages, how to collect or how to give the input, how to do the process, and how to do the output part. From today, we have to think like a developer side. Okay, you are the person who is going to create or who develop the software or program for the user. You have to think like a programmer, not like a user. अक्सर हम क्या होता है टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास हमें कोई कस्टमाइज डिजाइन होता है शलवार कमीज का या शर्ट हमें बनानी है या थ्री पीस हमें बनवाना होता है, तो वी गिव हमें डिजाइन। तो वो क्या बोलता है कि वो आपको कैटलॉग दिखाता है कि भाई ये कैटलॉग है, ये कलर्स है, ये डिजाइन है, जस्ट चूज इट कि विच वन यू वांटेड। तो हमने कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक रेडीमेड डिजाइन उसने हमें दिखाया, हमने वो चूज किया।
एक कस्टमाइजेशन हम उसको बोल रहे हैं। तो हमारे पास सूडो कोड में क्या होगा, जो कस्टमाइजेशन है कि आपको उस प्रोग्राम में क्या लिखना है, वो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। स्पेसिफिक टास्क जो क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जाएगा कि हमें इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। अब हम वो टेलर हैं, वो दर्जी हैं कि जिसको वो पूरा सूट या शलवार कमीज या जो भी आपने उसको काम दिया है सिलाई का, वो कंप्लीट करना है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि हाउ आई एम गोइंग टू टेक द इनपुट, how I am going to write the process, and how I am going to give the output to the user. The job of the user is that he already give you the question. He, he or she already give you the question. When you complete the question, the user will only put the values. If the after putting the values, the result is not accurate, it's mean your program become flop. It is useless. Then you have to identify or rectify the problem over there. So first thing, to making a program, then rectifying or troubleshooting a program is a second step. How to identify, and the way you can identify. So again I'm repeating this word. You have to think like a backhand user, like the instruction side. You have to focus on the instruction side कि how you are going to give information to the user. जैसे अगर अभी आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रही है, तो ये प्रोग्राम बना हुआ है, ये प्रेजेंटेशन कैसे दिखेगी, स्लाइड शो कैसे होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे होगी, ये पीछे सारा बैकएंड पे लिखा हुआ है। सिर्फ यूजर को क्या मिल रहा है, प्रॉम्प्ट मैसेजेस दिख रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्शन दिख रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन होगा। अब आपको जो सोचना है सूडो कोड के अंदर, वो बैक साइड का सोचना है। जो चीज सामने नहीं दिख रही है, उस चीज के बारे में आपको सोचना है। तो अब जो आपके सवाल होंगे, वो सवाल आपके उसी हिसाब से होने चाहिए कि सर, how I will going to write the statement for the input, how I have to write the statement of the process, how I am going to output something। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी फॉल करते हैं और आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी फॉल करते हैं। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, देयर आर थ्री बेसिक एंड मेन steps of any computer system or any programming language. Now next is arithmetic operators. As we all are aware that the computer system is only able to understand binary numbers or machine language. We says machine language or binary language. To give the instruction in the high level language, we require a translator. The job of the translator, translate the high level language into the low level language or machine language. Same thing to write with the help of the keyboard. In the chapter 1 and 2 we discussed there is a ASCII code. Okay, with the help of the ASCII code, okay, all the keys of our keyboard has a unique number, and that translator convert this unique number into the binary number. Same thing to arithmetic operators, we have some mathematic symbols, and we have to use the same arithmetic operators into the computer system. Before we have to start, this is a basic requirement ke if you wanted to do the addition in the programming, which type of the symbol you are going to use. If you wanted to divide, so which symbol you are going to use in a computer system when you are writing a programming, like either you are using a flow chart or pseudocode. The first operators, addition, it is very much easy. For the addition in mathematics, we are using a plus sign. The same thing you are going to use in programming language, a plus sign. Subtraction, the minus sign, a dash. We always using a not underscore, it is a single dash which is always on next to the zero on your keyboard. It is not underscore. ठीक है, हमेशा बच्चे प्रोग्रामिंग में क्या मिस्टेक करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए वो अंडरस्कोर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं सर ये तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डैश है। फॉर द मल्टीप्लीकेशन, ओवर हियर इट इज अ यूनिक साइन, it is not the x. We are not going to use the x in our programming. We always has to use the asterisk. Someone says asterisk, some say asterisk, but its official name is asterisk. ठीक है, it is as, but some say asterisk, star,
different terminology. For computer world, whatsoever the terminology you are using doesn't matter, but the sign should be the same. Someone says star, so don't worry about the name. Then the main focus is that wherever you have to multiply, you are not allowed to press X from your keyboard. If you are pressing X, the system will not accept your multiplication. It's considered as a alphabet. So you have to write with the help of asterisk if you wanted to multiply. Division, again, you are not allowed to use this sign in the computer language. You have to use this slash, not the forward slash. You have to use the backward slash for the division. For equal to, the sign is same, which we are using a mathematics. Greater than, the same sign will be used in computer as well. Less than is also the same one. Okay. Always the student get confused what is the greater than sign and what is the less than sign. So it's very easy. L, L is there. We just little bit curve. हमने L को क्या कर दिया, लिटिल बिट कर्व कर दिया. अगर जिसका मुंह राइट हैंड साइड से ओपन है वो आपका लेस देन साइन होता है, जिसका मुंह लेफ्ट हैंड साइड से ओपन है वो ग्रेटर देन साइन होता है. तो ये आपके पास. यहाँ पर हमारे पास एक और चीज होती है असाइनमेंट्स. आपने अक्सर अपनी बुक में देखा होगा कि सूडो कोड के अंदर ये एरो इस्तेमाल हो रहा है. इट्स टोटली अप टू यू कि यू आर गोइंग टू यूज द एरो और यू आर यूजिंग अ इक्वल टू साइन टू शो द असाइनमेंट. कंप्यूटर में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हम मैथमेटिक्स में ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, कि जो भी वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रही है वो कहाँ स्टोर हो रही होती है, राइट हैंड साइड के ऊपर स्टोर हो रही होती है. बट कंप्यूटर के अंदर ये इस तरीके से नहीं है. कंप्यूटर में उल्टा चलता है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. कि जो भी रिजल्ट आपका राइट हैंड साइड के ऊपर आया है वो सारा का सारा कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे जो एरो इस्तेमाल किया गया है वो लेफ्ट एरो इस्तेमाल होता है मैक्सिमम आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. व्हाई? बिकॉज व्हाटसोएवर द रिजल्ट यू हैव ऑन अ राइट हैंड साइड इट विल ऑटोमेटिकली स्टोर ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड. It will automatically store on left hand side, which I am going to discuss into the next slide कि how you are going to do this thing and how the computer system is using this feature. ठीक है. So the more there is a lots of operators which you learn time to time, but these are the very basic one which is very compulsory in your pseudocode while you are using pseudocode to write the program. Not equal to sign in the mathematics we are using this, but you are not allowed to use in computer programming. You are allowed to use this sign, less than and greater than. Got it? Less than and greater than sign. Greater than and equals, mathematics we are using this, but it is again not allowed. You are allowed only to use this one. I am just highlighting why this, because to give you the real differentiate between how we are going to use and why we are not going to use. Less than and equal, mathematics we are using this. We are not allowed to use this one in computer. We are going to use this sign. Okay, for example, you already study logic gate. Remember in that logic gate I told you that the logic gate will play a vital role in programming language. Wherever we require the two conditions should be true, so we have to use and it is a capital and not the small and. If you use the small and in a pseudo code, it will not accept it. It is not accepted in your examination. You have to write in capital letter because the and denote in a capital letter by default. Same thing with or. If there are two condition and we wanted to work on a single condition कि अगर दोनों में से कोई भी एक condition true हो जाए तो we are going to use or over there. Not. Okay, for example we have to going to note reverse or something else, so
it is we are going to use this one. Most of the time in a pseudocode which is most usable logic gate or the condition is and or. Most of the time we are going to use this thing over there. एनी कंफ्यूजन एनी क्वेरी, अभी तक किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर इनपुट आउटपुट और प्रोसेस को लेकर कोई क्वेरी किसी को अभी तक कोई कंफ्यूजन, या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज लेट मी नो, तो देन आई विल स्लो डाउन द लेक्चर. Basically, it's very easy. It is very much easy when we are doing the practice now, pseudocode practice question. So it will automatically memorize by you. Okay, when we are writing the pseudocode, and I will give you more than 50 or 100 questions to do the practice. Okay, so when you are continuously doing the practice, it is very much easy to understand. Why I'm giving you the difference? Because most of the time the student use the mathematic operations in programming, और फिर CI में उनके मार्क्स कट जाते हैं. मैं आपको डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम ये यूज नहीं करेंगे, हम प्रोग्रामिंग के अंदर डायरेक्ट ये ऑप्शन यूज करेंगे. जैसे मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ और वहां मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो फिर मैं ये वाला मल्टीप्लाई इस्तेमाल नहीं करूंगा उसके अंदर. आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, आई एम डायरेक्ट गोइंग टू यूज दिस वन. एट द टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, सर व्हाई यू यूज एस्ट्रिक. तो इसलिए मैं आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ और ये एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ ताकि यू विल बी रेडी फॉर द प्रोग्रामिंग. और हम ये सारे जो कंप्यूटर सिंबॉलिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हम अपनी प्रोग्रामिंग में कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएंगे सारे. ठीक है. हाँ, मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर भी डाल दिए. सुबह वाला लेक्चर अभी जस्ट कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा. और इसके बाद ये वाला लेक्चर भी जो है, जो मैं इसमें बेसिकली पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. So whatsoever I am explaining to you, whatsoever the question you are asking, everything will be recorded into the form of video. तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो you just go over there and just review the video. ठीक है. So now this is the question where we have to be more vigilant. अब यहाँ से अब हमें जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस इस पे रखना है. The practice question is that के write an algorithm using pseudocode to input the two values of A and B, calculate and output the sum of A and B. Number one thing, what he said, okay, write the algorithm. Just wait, I will just change the color. One part they said, write an algorithm with the help of pseudocode. Okay, you have to write the pseudocode to input two values A and B. See, the first instruction they said that you have to write the algorithm. Why are using your pseudocode? It means you have to write step by step instruction. The first part, the question how you are going to take the input. In the question is that it is always mentioned कि आपको इनपुट क्या लेना है. यहाँ पे जो इसने बता दिया कि आपको इनपुट क्या लेना है, टू वैल्यूज का इनपुट लेना है, और उनका क्या, किन टू वैल्यूज की, ए और बी की. इसने बोला एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है. ठीक है, उन दोनों की वैल्यू लेनी है. अब यहाँ पर पता है क्या आता है कि ए और बी है क्या. ए एंड बी इज अ वेरिएबल जिसके अंदर आपको वैल्यू स्टोर करानी है. ठीक है, ए एंड बी आपके पास क्या है, वैल्यूज है जिसकी आपको, सॉरी वेरिएबल है जिसकी आपको वैल्यूज ऐड करवानी है. अब उससे तीसरा पार्ट आपको क्या बोला यहाँ पर जो मेन है, कैलकुलेट एंड आउटपुट. तो ये जो कैलकुलेट वाली बात आ गई, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोसेस, जो हम बात कर रहे थे कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट उसने आपको डायरेक्टली दे दिया कि इनपुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. कैलकुलेट उसने बोला कि भाई कैलकुलेट आपका पार्ट आ गया प्रोसेस. देन आपके पास क्या एक और चीज आ गई, आउटपुट, जो हमारे प्रोग्राम का लास्ट पार्ट होता है कि जो भी आपने पूरे प्रोग्राम में किया, ठीक है, अब उसको आउटपुट करो. बट यहाँ पे बात है हम प्रोसेस तो करेंगे, प्रोसेस क्या करेंगे. इसने बहुत क्लियरली और डायरेक्टली आपको बोल दिया कि हमें क्या चाहिए, सम चाहिए. मैथमेटिक्स में सम का मतलब क्या होता है, एडिशन. कि हमें ए और बी की वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है. तो इसने डायरेक्टली हमारे को क्या बोल दिया,
बेटा राफे, इट्स अप टू यू कि आप इसको कॉपी में लिख रहे हो तो इसी तरीके से लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आप बोलते हो नहीं मैं सिर्फ कंप्यूटर सिंबल कॉपी में लिखूंगा तो आप सिर्फ कंप्यूटर सिंबल लिख दो कॉपी में, नो इशू। कॉपी में किस तरीके से लिखना है आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, so this is the few things which I identify from the question which you also have to do. When I give you the practice question, when the question paper in front of you, you have to identify this way, like for example, what is the input, ठीक है, how many values I have to take the as a input, then calculate an output. It's mean के I have to do the some process over there. Process name is also mentioned here, sum. Sum means addition. It's mean that के we have to write a small program for the addition. Okay, there's a two variables, ठीक है, variable A and variable B. What is mean by the variable? It is a container which only having a current value. Again I am repeating, what is mean by the variable? Variable, it is a variable is a container which is only having a current value. Current values mean that के what you are storing right now. सेकेंड टाइम जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो वो पहली वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा नई वाली वैल्यू से, कोई भी वैल्यू वो उसमें स्टोर नहीं करता। वेरिएबल इज ओनली हैविंग अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, just yes, I write A। मैं बताऊंगा, पहले आप पहले पूरा प्रोसेस समझ लो कि मैं इसको कैसे प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगा कि A0 कैसे आया, उसके बाद क्या आएगा। फर्स्ट आई राइट A0, देन आई राइट B0, then I write sum is equal to 0. The number one thing which you have to do in your programming, it is a initialization. In programming language आपको अपना प्रोग्राम के शुरू में वेरिएबल्स को बताना जरूरी है कि कौन सा वेरिएबल आप किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर आप हमारा पुराना लेक्चर जो सुबह हमने डिस्कस किया था, द लास्ट लेक्चर अबाउट इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, ओवर देयर वी डिस्कस कि योर प्रोग्राम शुड यूज अ मीनिंगफुल वर्ड्स। याद है मैंने कहा था कि हम उसको सूडो कोड में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीन बाय द मीनिंगफुल वर्ड्स। क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट कि यू हैव टू टेक द इनपुट ऑफ द वैल्यू ए एंड बी। उसने आपका वेरिएबल का नाम आपके क्वेश्चन में पहले से बता दिया। वेरिएबल ए क्या है आपका, ठीक है, वेरिएबल 1 क्या है, ए है, वेरिएबल 2 आपका क्या है, बी है। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमें क्या करना होता है कि इनिशियलाइजेशन में हमें ये बताना होता है कि व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। व्हाट विल बी द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल आपके पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, करंट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, जैसे मैंने आपको क्या देखा, टेलर को अब नहीं मालूम है कि मेरे को यूजर क्या इनपुट करेगा। आप डेवलपर है, आपको नहीं मालूम है कि यूजर जो है वो पहले ए की वैल्यू ऐड करेगा, बी की वैल्यू ऐड करेगा, तो हमें उसको बताना है। वो 5 ऐड करता है, 6 ऐड करता है, 7 ऐड करता है, वो उसकी चॉइस है। हमें तो ये प्रोग्राम बताया कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज इनपुट होगी। ठीक है, उस वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे, और एक तीसरा वेरिएबल है सम के नाम से, जिसके अंदर उन दोनों का सम अप आप दिखाओगे। मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था कि मैथमेटिक्स के अंदर हम ये लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। यही लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, बट कंप्यूटर के अंदर हम इसको रिवर्स चलते हैं। ये कंप्यूटर में रिवर्स चलता है कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन जाती है। अभी नसीर ने जो सवाल किया कि सर ये a इज इक्वल टू 0 आपने क्यों लिखा, मैंने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया। मैंने बोला फॉर द फर्स्ट इनिशियल फेज हमें नहीं मालूम है कि यूजर क्या वैल्यू इनपुट करेगा, और ना ही हमारा कंसर्न है यूजर क्या वैल्यू इनपुट करेगा और क्या नहीं करेगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा काम है हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें दो वैल्यूज इनपुट होंगी, उन दो वैल्यू को हमें सम के फॉर्मूले के अंदर इनपुट करना है,
और हमें उसको रिजल्ट को आउटपुट कराना है कि यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट कर दे, एंड ऑफ द डे ही विल गेट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, उस एक्चुअल वैल्यू को आने के लिए हमें सबसे पहले अपने वेरिएबल इनिशियलाइज कराने पड़ेंगे, हमें अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज वहां पे बतानी पड़ेगी कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है। अब ये जीरो क्यों आया, ये मैं प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इसको और ज्यादा इनहांस करके आपको समझाऊंगा कि ये हमने जीरो क्यों लिखा। ये तो आपका पार्ट हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। सीआई के अंदर एक नंबर का इसका पार्ट होता है कि ये एक नंबर के लिए पूछा जाता है कि काइंडली डू द इनिशियलाइजेशन ऑफ योर सूडो कोड। तो ये पार्ट आपका एक नंबर का जो हमने ऊपर क्वेश्चन से आइडेंटिफाई किया है। ए की वैल्यू है, बी की है, और नीचे हमें पूछा गया तीसरा जो हमारा होगा वेरिएबल वो होगा सम। अब हमने यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखी इनपुट ए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट है इनपुट और आउटपुट की। जब भी आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जब भी आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम उसके लिए स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं इनपुट स्टेटमेंट। और जब भी हमें यूजर को कोई रिजल्ट शो करना है, कोई भी यूजर को हमें रिजल्ट शो करना है तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्यों करेंगे, उसकी अलग टर्मिनोलॉजी क्या होगी वो मजीद मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। Input B, because in the question they said you have to input the two values, ठीक है, of A and B, the value of A and B, so we took input A and input B, ठीक है, we said input A and input B. This is the input part is processed because we have to take two input values. We write it two input values over there. Now we have to go to our second step, calculate. Which type of the calculation we have to do? We have to do the calculation of A and B. Sum is equal to A plus B. ठीक है, I put the value A is sum is equal to A plus B. Why I write sum is equal to A plus B? क्योंकि इसने क्वेश्चन में मुझे क्या बोल दिया था कि मुझे सम किसका चाहिए, इन दोनों का चाहिए। इसलिए बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है एडिशन का कि आपको कभी भी कोई वैल्यू ऐड करवानी होती है तो हम उसको इस तरीके से मेंशन करते हैं, एंड आउटपुट सम। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद आप में से भी कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर पहले तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आपने ऊपर a इज इक्वल टू 0 लिखा, b इज इक्वल टू 0 लिखा, सम इज इक्वल टू 0 लिखा। 0 क्यों लिखा वो आपने कहा कि सर अभी हमें मैं नहीं बता रहा, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। बट आपने जो स्टेप्स किए इन स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आपने बोला कि मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है लेफ्ट हैंड साइड विल इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट कंप्यूटर्स में ये रिवर्स चलता है, राइट हैंड साइड विल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोग्राम रन होने से पहले, प्रोग्राम चलने से पहले आपने ये लॉजिक बताई कि इस वक्त जो ये 0 है ये a की वैल्यू है, ये 0 b की वैल्यू है, और ये वाला जो 0 है वो सम की वैल्यू है इनिशियल स्टेज के ऊपर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट करनी है। हमने बोला ठीक है समझ में आ गया। अब हमने अपना सूडो कोड लिखा जो 4 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल था। दिस सूडो कोड इज ओनली टेक 4 लाइंस टू कंप्लीट। हमने 2 लाइंस में बोला कि हमें तो यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए देयर इज अ स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट। तो हमने उस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए इनपुट ए एंड इनपुट बी कर दिया। ठीक है, उसी के साथ हमने बोला अब हमें हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड स्टेप हमें करना है कैलकुलेट। तो यहाँ पे सर ने लिख दिया सम इज इक्वल टू ए टू बी, बट सर ने ऊपर क्वेश्चन में तो सम इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो यहाँ पर क्यों सर ने जो है वो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख दिया। हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी इसलिए लिखा क्योंकि सवाल की एक रिक्वायरमेंट थी कि कैलकुलेट एंड आउटपुट द सम ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का हमें सम कब मिलेगा, जब हम उसके ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिखा सम इज इक्वल टू 0 जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, बट प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर आकर हमने उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि सम की जो वैल्यू होगी वो कैसे जनरेट होगी। देखो इस 2 पार्ट के अंदर इनपुट में तो आपने यूजर से इंफॉर्मेशन ले ली। अब जब यूजर से जो इंफॉर्मेशन आपने ली कि वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी, उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, सम के वेरिएबल में। आपने बोला सम
किसके बराबर होगा, सम में कहां से वैल्यू आएगी, सम में वैल्यू आएगी वैल्यू ऑफ ए प्लस वैल्यू ऑफ बी, कि जो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड वाला जो कॉन्सेप्ट था कि जो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा वही जो है आपका सम की वैल्यू होगी, ठीक है। और आउटपुट स्टेटमेंट वही होती है जो मैंने आपको बताया कि जो आपको यूजर को आउटपुट दिखाना है, आप चाहते हो कि ये यूजर आउटपुट देखे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको सम कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी सी वर्किंग जो मैंने यहाँ पर की है, उसके बाद मैं आपको माइक ऑन कर दूंगा कि आप अपने सवाल करो, ताकि मैं उन चीजों को क्लियर करूं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। सबसे पहला पार्ट जो हमने किया वो इनिशियलाइजेशन का पार्ट था, जिसमें हमेशा हम वैल्यू 0 रखते हैं ताकि कभी भी वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे यूजर की वैल्यू से, ठीक है। 0 लिखा है मतलब इनिशियल वैल्यूज कुछ भी नहीं है, जो यूजर टाइप करेगा वही वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे वही वैल्यू होगी, अदरवाइज वो उसको सम अप करना शुरू कर देगा। सेकेंड पार्ट जो हमने ये इनपुट का किया, इट इज द इनपुट स्टेटमेंट। whenever you require to take information from the user, you have to only use the input statement। अब इनपुट के साथ बहुत सारी जगह पे पता है क्या लिखा हुआ होता है, अक्सर सीआई में लिखा हुआ होता है रीड। अगर आपके पास रीड लिखा हुआ है या इनपुट लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, दे ओनली यूज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। I saw the past paper of CI. They somewhere they use a read statement. Someone they said input statement. So both statement are same. ये वाला जो पार्ट हमारा था ये प्रोसेस पार्ट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये मैं दोबारा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये वैल्यू यहाँ पर स्टोर, ये जो पार्ट हमने किया दिस इज अ प्रोसेस पार्ट। And the last part of this pseudocode is output statement। आउटपुट स्टेटमेंट के लिए दो टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल होती हैं, डिस्प्ले, अच्छा सॉरी फॉर द राइटिंग, ठीक है, आप ये नहीं बोलना कि सर इतना इस पे डिजाइनिंग के साथ आप लिख रहे हो इसके ऊपर, या फिर इस्तेमाल होता है प्रिंट। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग कि इफ यू आर यूजिंग अ इनपुट स्टेटमेंट तो थ्रू आउट द प्रोग्राम यू हैव टू यूज द इनपुट। इट्स नॉट लाइक कि फर्स्ट लाइन में आपने इनपुट इस्तेमाल किया, सेकेंड लाइन में आप रीड इस्तेमाल कर रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। अगर आपको रीड इस्तेमाल करना है तो आप रीड इस्तेमाल करो, अगर इनपुट इस्तेमाल करना है तो इनपुट इस्तेमाल करो, बट एक ही टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे, अलग अलग नहीं करोगे। कहीं पे डिस्प्ले लिख रहे हो, कहीं पे आउटपुट लिख रहे हो, कहीं पे प्रिंट लिख रहे हो, नो, इधर यूज डिस्प्ले, प्रिंट और output। I recommend to O level students कि try to use input and output, do not use read, display और print। वो ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि पास्ट पेपर की जितनी मार्किंग स्कीम्स आई हैं उन सब के अंदर जो है वो इनपुट एंड आउटपुट का बात की जाती है। हमने वहां पर एक चीज और देखी थी, असाइनमेंट। आप ये इक्वल टू का साइन देख रहे हो, इस इक्वल टू साइन के रिप्लेसमेंट में अक्सर बच्चे या आपकी किताब के अंदर ये एरो इस्तेमाल हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आप इक्वल टू इस्तेमाल करो या एरो इस्तेमाल करो, बट एरो लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ये एरो राइट डायरेक्शन में हो गया तो आपका पूरा सूडो कोड गलत हो जाएगा। अब ये जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए थे ये ऑल आर द वेरिएबल्स, ठीक है। अब मुझे आप लोग के पास से ओपन एंड का आपके पास है कि आप मुझसे सवाल करो कि क्या आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, ठीक है। और मैं अगर आप मुझे बोलते हो कि सर आप हमें कोई प्रैक्टिकल करके दिखाओगे प्रोग्राम कैसे चलता है, तो गिव मी 1 मिनट, तो आई विल शो यू द प्रोग्राम कि हाउ द सेम प्रोग्राम रनिंग, तो देन यू विल आस्क मी द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द बेसिक वन। Hope its screen is visible on your computer, right? So this is a small program as I'm just trying to write in basic language। as you know कि basic language की अपनी तरीक़ेकार है। अब हमने एक सूडो कोड लिखा, अगर उसको हम किसी हाई लेवल, बेसिक लैंग्वेज हम बोलते हैं बट ये भी एक तरीके की हाई लेवल
लैंग्वेज है, जिसका टेक्निक ये है कि लाइन बाय लाइन जो ये प्रोग्राम को यूज कर रही होती है। अब जैसे हमारी पहली स्टेटमेंट थी इनपुट, ठीक है, हमने कहा था कि इनपुट आना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जितना भी बेसिक में होता है कि हमें प्रॉम्प्ट मैसेजेस देने पड़ते हैं, कि यूजर को बताना पड़ता है प्रॉम्प्ट मैसेजेस के बारे में कि उसको क्या इनपुट करना है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। और जो इनिशियलाइजेशन की हमने बात वहां पे की थी, यहाँ पर बेसिक के अंदर इनिशियलाइजेशन ये होती है कि आप सेमी कॉलन के बाद उस वेरिएबल को मेंशन कर दो, जैसे ये ए हो गया। लाइन नंबर 30, इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ब्रैकेट क्लोज एंड बी। जो ये इन्वर्टिस कोमा हमने इस्तेमाल किए हैं, इट्स ऑलवेज यूज फॉर द स्ट्रिंग इन द प्रोग्रामिंग। अगर हमें कोई करेक्टर सेम एज इट इज लिखना है, हम जैसे आपका नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, कंप्यूटर स्टडीज हो गई, हमें कोई ऐसी चीजें जहां पर हेडिंग लिखनी है या प्रॉम्प्ट मैसेजेस देने, वहां पे वी हैव टू यूज इन्वर्टिस कोमा विद द सेम स्टेटमेंट, सिर्फ नंबर्स इसमें नहीं आएंगे। हमने जो फोर्थ लाइन लिखी थी, इनपुट दो थे हमारे पास, दो इनपुट खत्म हो गए। हमने वहां पे बोला कि सम इक्वल टू ए प्लस बी, हमने यही लिखा था वहां पर, ठीक है। ए प्लस बी था हमारे पास, कि जो प्रोसेस पार्ट है। हमारे पास तीसरा पार्ट हमारे पास ये था कि हमें जो वहाँ पे ये मेंशन करना था कि हमारे पास आउटपुट क्या होना चाहिए, तो हम ये लिखते थे यहाँ पर बेसिक में होती है जो कमांड इस्तेमाल होती है वो होती है प्रिंट की। तो हम यहाँ पे हेडिंग देते द सम ऑफ बोथ ए, बोथ वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे शो कर दिया सम, लाइन नंबर 60 एंड। कोई भी हम हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर हमें प्रोग्राम स्टार्ट और एंड करवाना होता है। तो यहाँ पे जो हम बेसिक लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपके पास CLS से हम मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हम वी हैव टू राइट एंड ओवर देयर, तो वो प्रोग्राम वहाँ पर हमारे पास एंड हो जाता है। तो ये वही हाई लेवल सूडो कोड की स्टेप्स हैं जो मैंने भी आपको पावर पॉइंट में दिखाए थे। देन आई राइट इट इनटू द GDB बेसिक, द सेम थिंग। लेट्स सी कि दिस प्रोग्राम इज रनिंग और नॉट। सी द फर्स्ट वैल्यू दे सेड एंटर द वैल्यू ऑफ ए, you don't know this is the part the user is doing. They put 10, value of b is 24, and the result will come the sum of both variable is 34, ठीक है। ये वो वैल्यू देखो, हमें हमने हमारी जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हमने कहीं पर भी कोई वैल्यू का जिक्र नहीं किया। इनिशियलाइजेशन में हमने जीरो इसलिए लिखा क्योंकि हमें वहां पर पेपर पे करना है। यहाँ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमने सिर्फ वेरिएबल लिखा है और कोई वैल्यू कंसीडर नहीं की है, तो इट्स अंडरस्टूड कि द वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। Like, share, comment and subscribe my channel.